Good morning, dear student. Today we will read first chapter of Golden Race. Dear student, the book that saved the earth. Here, some main characters are given. First one, historian. Historian is a person who tells us about this story through his movie projector. Dear student, historian tells us about the invasion of Martians. Dear student, second one, great and mighty think tank, who was the ruler of Mars. Apprentice Noodle. He is most intelligent and respectable member of Mars. Apprentice Noodle, Captain Omega, Lieutenant Iota, Sergeant and of stage voice. Dear student, scene past, read and find out. पढ़ो और पता लगाओ. Why was the 20th century called the era of book? 20वीं शताब्दी को पुस्तकों का युग क्यों कहा जाता था? Who tried to invade the earth in the 21st century? Dear student, you will write down answer of these questions in your notebook. When we will read the chapter and find out. Dear student, time 25th century, palace, museum of ancient history department of 20th century on the planet earth. पृथ्वी पर 20वीं शताब्दी का एक विभाग, प्राचीन इतिहास का संग्रहालय. Before I spot science on historian who is sitting at a table down right, on which is a movie projector. A sign on a easel beside her reads Museum of Ancient History Department of 20th Century. She stands and bows to audience. Dear student, historian के ऊपर एक रोशनी की एक बिंदु चमकती है. दाहिनी और नीचे वह एक टेबल के ऊपर बैठी हुई है जिसके ऊपर एक मूवी प्रोजेक्टर होता है. ए साइन ऑन एन ईजल, एक चतुष्फलक के ऊपर संकेतक, उसके बगल में एक चतुष्फलक का संकेतक जिस पर वह पढ़ती है. प्राचीन इतिहास का संग्रहालय, 20वीं शताब्दी का एक विभाग. सिस्टेंट एंड बोज टू ऑडियंस, वह खड़ी होती है और दर्शकों का झुककर प्रणाम करती है. हिस्टोरियन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट क्यूरियोसिटीज ऑफ गुड ओल्ड फार ऑफ 20th century. The 20th century was often called the era of the book. In those days there were books about everything from anteater to jewelers. Books taught people how to and when to and where to and why to. They illustrated, educated, punctuated and even decorated. But the strangest thing a book ever did was to save the earth. Dear student, historian welcomes her audience. She says, good afternoon, welcome to our museum of ancient history, my department. 20वीं शताब्दी की दूरस्थ अच्छी जिज्ञासाओं वाले मेरे विभाग में, प्राचीन इतिहास के संग्रहालय में स्वागत करती हूँ. 20वीं शताब्दी को प्रायः पुस्तकों का युग कहा जाता था. उन दिनों हर चीज़, हर बात के लिए, हर चीज़ के लिए पुस्तकें थीं. चाहे वो छोटे से छोटा जीव जो चींटियाँ खाता है, और जुलस इज ए पैलेस where the old people of South African lives.
डियर स्टूडेंट, जुलस एक कबीला होता है जो दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है होती है। बुक्स मनुष्य को सिखाती है कि कब कोई चीज़ का कैसे घटित होती है, कब होती है, कहाँ, क्यों आदि के बारे में सिखाती है। पुस्तकें ही थी जिन्होंने मनुष्य को सिखाया, सुसज्जित किया और शिक्षित किया। लेकिन सबसे विचित्र बात क्या, एक पुस्तक कभी पृथ्वी को बचा पाई थी। डियर स्टूडेंट, यू हैव नॉट हर्ड अबाउट द मार्टिन इन्वेजन। Tusk, what do you they teach children nowadays? You will know the invasion never really happened because a single book stopped it. What was the book you ask? A noble encyclopedia, a tome of rocket and missiles, the secret file from outer space? No, it was none of those. It was, but here let me turn on the stethoscope and show you what happened many centuries ago in 2040. She turns on projector and points out its left spotlight on historian, goes out and comes up down left on think tank, who is seated on a rice box, arms folded. He has a huge except Henry, and he wears a long robe decorated with star and circles. Apprentice Noodle stand beside him at elaborate switchboard, a sign on an easel reads, Dear student, historian अपने दर्शकों का स्वागत करती है, हमें बताती है कि 20वीं शताब्दी को पुस्तकों का युग कहा जाता है। एंड ए क्वेश्चन इज गिवन अबव इन कंप्रेंशन चेक, वाई वाज द 20th century often called an era of the above? Dear student, the 20th century was often called the era of because क्योंकि there were everything about books. सो थिंक टैंक के विषय में बताती है और मंगल ग्रह के 2040 में आक्रमण के बारे में हमें कहती है कि आपने उसके बारे में नहीं सुना होता है, और हैरानी प्रकट करती है कि क्या आजकल वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाते हैं। आप जानते हैं कि आप जानते हैं ऐसा कभी भी वास्तव में घटित नहीं हुआ, क्योंकि एकमात्र पुस्तक ने इसे रोक दिया था। वह पुस्तक क्या थी, कौन सी पुस्तक थी आप पूछोगे? क्या वह एक नोबल साइक्लोपीडिया थी? एक नोबल इंसाइक्लोपीडिया यानी कि एक उच्चतम विश्वकोश, एक पुस्तक जो सभी प्रकार की जानकारी रखती है। एक टॉम, क्या वह एक टॉम था रॉकेट और मिसाइल पात्रों से संबंधित? क्या वह दूसरे ग्रह का एक गोपनीय फाइल थी? नहीं, इट वॉज नन ऑफ दोज, ये इनमें से कोई नहीं था। इट वॉज बट हिस्टोरियन कहती है कि मुझे सबसे पहले स्टेथोस्कोप एक डिवाइस होता है जो कि इतिहास के संबंधित चीज़ों को स्लाइड्स के माध्यम से प्रकट करता है, और कहती है कि मुझे दिखाने दीजिए, प्रदर्शित करती हूँ कि मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कई वर्षों पूर्व 2040 में क्या घटित हुआ था। वह एक प्रोजेक्टर चालू करती है और इसे बाईं ओर संकेत करती है, बाईं ओर दाहिनी ओर बाईं ओर संकेत करती है। स्पॉट लाइटिंग ऑन गोज आउट, हिस्टोरियन गोज आउट, रोशनी हिस्टोरियन से चली जाती है और नीचे बाईं ओर थिंक टैंक के ऊपर आती है, जो कि एक उभरे हुए डिब्बे पर, बॉक्स पर बाहों को समेटे हुए बैठा हुआ होता है, और वह एक अंडे के आकृति का सिर रखता है। वह तारों और से आकाश गंगाओं से सजा हुआ एक लंबा लंबादा पहनता है। अप्रेंटिस नूडल एक स्वचालित बोर्ड के बगल में खड़ा होता है। एसाइन ऑन एन ईजल रीड्स, और एक चतुष्फलक बोर्ड के ऊपर पढ़ती है। मास स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ। डियर स्टूडेंट, you will have to remember that what was on the an easel. Dear student, mass space control and great and mighty think tank commander in chief bows low before entering. डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा होगा कि एक चतुष्फलक होता है जो कि किसी के पदवी के बारे में बताता है। वहाँ पे लिखा हुआ था मास स्पेस कंट्रोल
मंगल ग्रह, मंगल अंतरिक्ष नियंत्रण, महान शक्तिशाली थिंक टैंक, सेना प्रमुख। नूडल, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स? ओ महान शक्तिशाली थिंक टैंक, संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वाधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी, आपके क्या आदेश है? थिंक टैंक, प्रीवियसली यू लेफ्ट पार्ट ऑफ माई सोल्यूशन, प्रिंस नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन। गुस्से से नूडल से कहता है कि तुमने मेरे अभिवादन का कुछ हिस्सा छोड़ दिया है। प्रिंस नूडल, वापस संपूर्ण चीज़, इस संपूर्ण चीज़ अर्थात पूरे अभिवादन के लिए वापस जाओ। नूडल कहता है शैल बी डन सर। In a singing song, great mighty think tank, ruler of Mars and Earth, two moons, most powerful and intelligent creature in the whole universe, out of breath, what are your orders? नूडल कहता है ऐसा ही होगा सर। महान शक्तिशाली थिंक टैंक, मंगल ग्रह और उसके 2 चंद्रमाओं के स्वामी, सर्वाधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी, आपके क्या आदेश हैं? स्टूडेंट्स, नूडल ने अपने सॉल्यूशन के अंदर केवल मात्र उसके चंद्रमाओं के विषय में छोड़ दिया था, इसलिए वह नाराज़ हो जाता है और वापस उसको जाने के लिए, संपूर्ण चीज़ पे जाने के लिए कहता है। थिंक टैंक, दैट्स बेटर नूडल, आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विथ आवर मैन स्पेस प्रोब टू दैट रिडिकुलस लिटिल प्लांट वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जनरस रूलरशिप, व्हाट डू दे कॉल इट अगेन? थिंक टैंक नूडल से कहता है कि बेहतर है और अच्छा, थोड़ा अच्छा है। नूडल, मैं हमारे अंतरिक्ष कृमि दल के लोगों से साथ संपर्क करना चाहूँगा जो कि उस हास्यात्मक छोटे से ग्रह जिसको हम हमारे विशालकाय शासन के अंदर, रूलरशिप के अंदर रखने वाले हैं, उसके ऊपर कब्जा करने वाले हैं, करेंगे। व्हाट डू दे कॉल इट अगेन? नूडल, मुझे दोबारा बताओ वो इसको क्या कहते हैं? तो नूडल कहता है अर्थ, महामहिम अर्थ। थिंक टैंक, अर्थ ऑफ कोर्स यू सी एंड हाउ insignificant the palace is, but first something important, my mirror, I wish to consult mirror. Dear student, थिंक टैंक सोचते हुए कहता है पृथ्वी, ऑफ कोर्स आप जानते हो पृथ्वी कितना महत्वहीन स्थान है, लेकिन सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़, मेरा दर्पण, मैं अपने दर्पण से कुछ परामर्श करना चाहता हूँ। नूडल कहता है इट्स शैल बी डन सर। ही हैंड्स थिंक टैंक ए मिरर, ऐसा ही होगा, और वह थिंक टैंक को एक दर्पण सौंपता है। थिंक टैंक, मिरर मिरर इन माई हैंड, मिरर मिरर मेरे दांत में। हु इज़ द मोस्ट फैंटेस्टिक इंचिकुलली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड? नूडल, थिंक टैंक दर्पण से पूछता है कि संपूर्ण धरती पर सर्वाधिक सुंदर, बुद्धिमान, प्रतिभा वाला व्यक्ति कौन है? गिफ्टेड मीन्स प्रतिभाशाली। ऑफ स्टेज वॉइस आफ्टर पॉइज योर सर। थिंक टैंक, स्मेकिंग मिरर क्यूकर, answer क्यूकर, next time I had slow mirrors, he admires himself in the mirror, oh there I am, are we Martians not a handsome race, so much more attractive than those ugly earthlings with their tiny heads? Noodle, you keep exercising your mind and someday you will have a balloon brain just like mine. Noodle says, oh, I have so mighty think tank, I have. Think tank, now contact to the space probe, I want to invade that primitive ball of mud called Earth before lunch. Noodle, it shall be done, sir. He adjusts lever on switchboard, electronic buzzes and beeps are heard as the curtains open. Dear student, थिंक टैंक मिरर से कंसल्ट करता है और पूछता है कि इस पृथ्वी के ऊपर, इस धरती के ऊपर सर्वाधिक प्रतिभाशाली बुद्धिमान प्राणी कौन है? पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, आप सर। नूडल अपने स्वयं की प्रशंसा करता है और पूछता है कि नूडल, क्या हम मंगल ग्रहवासी इतने सुंदर नहीं हैं? और उसे कहता है कि तुम भी अपने मस्तिष्क के अंदर
एक्सरसाइज जारी रखो, तुम्हारा मस्तिष्क भी एक दिन एक मेरे समानी बैलून मेरे वाले मस्तिष्क के समान ही एक विशाल बैलून के समान हो जाएगा, प्राप्त करोगे। थिंक टैंक नूडल को आदेश देता है कि इस मंगल ग्रह के कृमि दल किसी लोगों से संपर्क करवाओ। मैं उस पुरातन मिट्टी के गोले जिसको पृथ्वी कहा जाता है लंच से पहले आक्रमण करना चाहता हूँ। नूडल कहता है ऐसा ही होगा। डियर स्टूडेंट, सीन पास्ट में आप लोगों को ध्यान रखना है कि 20वीं शताब्दी को पुस्तकों का काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ के बारे में पुस्तकों में लिखा हुआ होता है, अंकित होता है। पुस्तकें थी जो मनुष्य को सिखाती है कैसे, कब, कहाँ इत्यादि। उन्होंने मनुष्य को एजुकेटेड किया, डेकोरेटेड किया, पंक्चुएटेड किया। पर 21वीं शताब्दी में पृथ्वी के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किसने किया था? 21वीं शताब्दी में तो डियर स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल, थिंक टैंक wanted to invade on earth in 21st century, and we can answer the Martians wanted to invade on the earth in 21st century. Dear student, थिंक टैंक पृथ्वी को क्या कहता है? What does think tank call the earth in his description? Dear student, first he calls the earth a ridiculous little plant, and he says it as insignificant palace, and at last he calls it a primitive ball of mud named earth. Dear student, tomorrow we will read the scene second, and I ask you to read scene second.